Hello students, now in previous video we have seen commercial cells or batteries and specifically we have discussed primary cells. पिछले वाले में हमने जो डिस्कशन किया था that was about primary cell. Now we have to discuss secondary cells. अब secondary cells जैसा हमने पहले बताया था as already I have told you कि secondary cells these are the rechargeable cell means इनके आपके chargeable cell हैं, इनको recharge कर सकते हैं means they can be used again and again. Once you use them they are exhausted, again recharge them, they can be used, again they are exhausted, अगेन दे कैन बी यूज्ड. जैसे इन्वर्टर बैटरीज हैं, आप उसको डेली चार्ज भी करते हैं, डेली डिस्चार्ज करते हैं. डेली व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कमिंग द बैटरी इज चार्ज्ड एंड व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, जब बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आती है देन दैट टाइम दैट बैटरी गिव्स यू द इलेक्ट्रिकल करंट. दैट कॉमन बैटरी इज योर लेड स्टोरेज बैटरी. सबसे कॉमन जो बैटरी है वो लेड स्टोरेज बैटरी है. इन्वर्टर के अंदर इफ़ यू सी दैट बैटरी कंटेन्स अ कम्बिनेशन ऑफ 6 सेल्स. 6 सेल्स होते हैं कनेक्टेड इन सीरीज. अगर आप उसकी टॉप को देखेंगे, इफ यू सी द टॉप ऑफ दैट बैटरी, दिस टाइप ऑफ बैटरी इज हियर एंड इफ यू सी द टॉप हियर यू विल सी 6 कंपार्टमेंट. इसमें 6 कंपार्टमेंट आपको मिलेंगे दिस वे एंड 1 2 3 4 5 6 दिस वे यू विल फाइंड टर्मिनल्स. ऐसे टर्मिनल्स आपको मिलते हैं उसमें. इफ इट इज पॉजिटिव टर्मिनल that will be negative, positive, negative, positive, negative, then positive, negative, positive, negative, positive, negative. It means this terminal is negative. If you see it, इसको आप देखें तो these cells 1 2 3 4 5 6 these cells they have been connected in series. Positive, negative, then positive, negative. यहाँ से आप इसको ऐसे कनेक्शन देखेंगे, they are connected this way. एंड इनसाइड इट दिस वन इज अ कंपार्टमेंट. ये एक आपका कंपार्टमेंट होता है. दिस इज वन मोर कंपार्टमेंट, दिस इज थर्ड कंपार्टमेंट. इसके बैक में भी 3 कंपार्टमेंट्स एंड ईच कंपार्टमेंट हैज़ द प्लेट्स ऑफ लेड. इसका वन पार्ट, दिस पार्ट आई हैव ड्रॉन हियर, दिस नॉट कंप्लीट सेल, दिस इज सिंपली वन सेल आउट ऑफ दीज 6 सेल्स. समवेयर इन कार बैटरीज यू विल सी कि 3 सेल्स हैं. कार बैटरीज में आप देखेंगे कम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स. जरूरी नहीं है आपके 6 ही हो. देर मे बी कम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स, देर मे बी कम्बिनेशन ऑफ 4 सेल्स, देर मे बी कम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स एज पर द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका इस सेल्स का नंबर कम ज़्यादा हो सकता है. बट योर लेड स्टोरेज बैटरी यूज इन इन्वर्टर्स, इन्वर्टर बैटरी के अंदर 6 होते हैं आपके. अब इसके अंदर जो एनोड है, एनोड इज मेड अप ऑफ एनोड, इट इज मेड अप ऑफ लेड प्लेट्स. कैथोड इज मेड अप ऑफ lead plates packed with lead oxide, and this electrolyte is concentrated sulfuric acid solution H2SO4. इसके अंदर बहुत concentrated H2SO4 sulfuric acid होता है. Now when this cell is working, अब सेल वर्क कैसे करता है? When you have to take out the voltage लेते हैं आप, इससे आप इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हैं. That time at anode lead is oxidized to Pb2 positive and donates 2 electron. This lead solid, it becomes lead aqueous. Means एनोड से lead निकलेगा and will come to the electrolyte. Electrolyte में क्या है? H2SO4 है. Then this Pb2 positive combines with SO4 negative. SO4 negative of electrolyte and will give PbSO4. So overall reaction you can say कि Pb solid, Pb2 positive will cancel, plus SO4 negative gives PbSO4 aqueous plus 2 electrons. Now this is the reaction at anode. This is the reaction at anode. Now at cathode what will happen? Cathode पर क्या है? lead oxide है. That lead oxide has to be reduced. अभी lead oxide कैसे reduce होता है कि that PbO2 it reacts with H positive from H2SO4. H positive कहाँ से आएगा? That will come from H2SO4. It takes 2 electrons donated by anode and then it is converted to Pb2 positive plus this one 2 H2SO4.
नाउ these two reactions, अब ये एनोड पर हो गया, this at cathode. This Pb2 positive will again react with SO4 2 negative. It will give PbSO4. If you join these two reactions, this is a reaction at anode. Cathode पर ये दोनों reaction है. If you join them, then Pb2 positive will cancel. Pb2 positive. Left side you have PbO2 plus 4H positive plus SO4 2 negative. 2 electrons they were taken by anode. It will give PbSO4 plus 2H2SO4. Now these two reaction, this is the reaction at anode and this is the reaction at cathode. अब H2SO4 बनाया प्लस 2H पॉजिटिव भी है, प्लस you have 2H positive. Now these two reaction if you join them, इनको आप join करिए. If you join them, this one and this one, reaction at anode and reaction at cathode, इन दोनों को reactions को add कर दीजिए. Then you will have Pb this one plus PbO2 plus SO4 to negative and 4H positive means H2SO4 and H2SO4 to H2SO4. Then 2 electron and 2 electron. It is right side, left side. They will also cancel out. What remains? PbSO4 and PbSO4 is 2 molecules of PbSO4 plus 2 H2SO4. Now this is the total reaction. अब H2SO4 में आपका not H2SO4, this is H2O. H2. Now basically lead is oxidized to lead sulfate. Lead oxide is reduced to lead sulfate. Lead का if it is neutral atom, oxygen state will be 0. PbO2 oxygen is -2, so -2 into 2 -4, so Pb will be +4. And here SO4 is 2 negative, so Pb is 2 positive. तो 0 से +2 and +4 से +2. +4 से 2 हुआ means reduce हुआ, and 0 से +2 means oxidize हुआ. So this is the total overall reaction. Now this reaction takes place when electric supply is given. एनोड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ एंड कैथोड पर एक्सेप्ट हो गया. तो ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आप नहीं शो करेंगे. Now this is the overall reaction when this battery is being discharged. यानी बैटरी आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रही है. When electricity is being supplied by the battery. तो ये रिएक्शन आपका होगा ओवरऑल रिएक्शन. If you pass electricity, अब ये आपका सेल हो गया, कंप्लीट हो गया, रिएक्शन हो गया, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया. कंप्लीट एग्जॉस्ट होने के बाद व्हेन द बैटरी इज़ नॉट वर्किंग, आप क्या करेंगे? यू विल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी. आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे इसको. इलेक्ट्रिक सप्लाई देने पर दिस रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड. मीन्स PbSO4 अगेन कन्वर्ट टू Pb एंड PbO2 एंड H2SO4. यानी इसके अंदर आपका दोबारा से लेड बन जाएगा, यहाँ पर लेड ऑक्साइड बन जाएगा कैथोड पर, और H2SO4 बन जाएगा. मीन्स ऑल रिएक्टेंट्स यूज, जितना आपका यूज़ हुआ था वो दोबारा बन जाएगा. एंड द सेल विल स्टार्ट वर्किंग अगेन इट विल डिस्चार्ज. अब आपने यूज़ कर लिया, आप दोबारा इसको यूज़ करेंगे, सेम रिएक्शन होगा. व्हेन अगेन यू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, द रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड. तो दिस इज बेसिकली रिएक्शन इन डिस्चार्जिंग, रिएक्शन इन चार्जिंग. जब आप चार्ज करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन, डिस्चार्ज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन. सेम रिएक्शन इज रिवर्सिबल. कब? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे, व्हेन सेल इज गिविंग यू द इलेक्ट्रिसिटी, फॉरवर्ड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. व्हेन यू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस. Now this is basically lead storage battery. अब lead storage battery के बाद नेक्स्ट हम करते हैं आपका निकल कैडमियम सेल. निकल कैडमियम सेल इज ऑल्सो सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल है आपका, रिचार्जेबल बैटरी है. अब इसको जो यूज़ करते हैं आप ऐसी डिवाइस में यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका वेट कम चाहिए. पोर्टेबल डिवाइसेस हैं. पोर्टेबल डिवाइसेस मीन जहाँ आपको एक दूसरे शिफ्ट करना है. जस्ट लाइक माइक्स हैं आपके. माइक्स के अंदर आप इस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं रिचार्जेबल.
ऑल्दो एक लिथियम बैटरी भी यूज़ की जाती है, दैट इज़ इन मोबाइल्स, एंड समटाइम इट इज़ यूज इन माइक्स ऑल्सो, बट नॉर्मली ये वाला यूज़ किया जाता है. इट इज़ कॉस्टली इन कंपेरिजन टू लेड स्टोरेज बैटरी. इससे ये कॉस्टली है, कॉस्ट ज़्यादा है इसका. निकल कैडमियम बोथ मेटल्स आर कॉस्टली मेटल्स, बट स्टिल व्हेन वी यूज़, जब हमें ज़रूरत है, यू नीड अ लाइट वेट बैटरी, देन वी यूज़ दिस निकल कैडमियम बैटरी. अब नेक्स्ट हम जो बात करें निकल कैडमियम बैटरी, डिज़ाइन आपका सिमिलर है टू एज दैट ऑफ योर ड्राई सेल. ड्राई सेल जैसे आपका स्फेरिकल बॉडी होती है, वैसी स्फेरिकल ये भी आपका है, ये स्फेरिकल बॉडी है. इसको हमने कट करके आपको दिखाया हुआ है. हियर व्हाट वी हैव शोन कि इट इज़ द कटिंग ऑफ द सेल. आपका सेल है, उसको कटिंग करके अंदर से क्या है, इनसाइड इट देयर आर सर्टेन फ्लैप्स. ये आपकी प्लेट्स होती हैं सर्कुलर, आपकी ऐसे ये सेल है, इसके अंदर देयर आर रोल्स ऑफ योर एनोड एंड कैथोड. एनोड है आपका कैडमियम, कैथोड आपका इसके अंदर निकल का है, निकल ऑक्साइड है. निकल ऑक्साइड का कैथोड, एनोड इज रोल्ड हियर, कैथोड इज रोल्ड हियर, और एनोड और कैथोड के बीच में एक सेपरेटर होता है. मीन्स वन लेयर ऑफ दिस वे, वन लेयर ऑफ योर एनोड, उसके अंदर अनदर लेयर ऑफ कैथोड, और दोनों के बीच में सेपरेटर. देयर इज अ सेपरेटर इन बिटवीन. सो दिस इज लेयर ऑफ एनोड, दिस इज लेयर ऑफ कैथोड, इन बिटवीन एक लेयर आपका और आ जाता है, दैट इज बेसिकली सेपरेटर. मीन सपोज एनोड है, इसके अंदर ही आपका सेपरेटर है, एंड देन देयर इज अ लेयर ऑफ कैथोड. दोनों की लेयर आपकी डिफरेंट इस तरह से जेली लाइक सब्सटेंस होता है. मीन्स द केमिकल्स हैव बीन सोक्ड टू मेक अ जेली लाइक सब्सटेंस, और इनको आप बना करके दिस सेल इज यूज्ड वेयर कैडमियम इज ऑक्सीडाइज. कैडमियम ऑक्सीडाइज होगा. इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर आपका यूज़ करते हैं QH. बेसिकली सेपरेटर है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट, एंड इट इज़ ऑल्सो जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें KOH सोक किया हुआ होता है. KOH को सोक कराकर जेली लाइक बनाया जाता है. नाउ कैडमियम इज ऑक्सीडाइज टू CDO. कैडमियम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन. Cadmium will donate 2 electron, becomes CDO, plus OH negative becomes H2O water. In next step, this is reaction at anode. Anode पर cadmium is oxidized to cadmium oxide. Cadmium oxygen state will be 0. Here it will be +2, oxygen is -2. So cadmium is oxidized, and OH negative is converted to H2O. Means OH negative ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपका H2 हो गया, रिड्यूस हो गया. Cadmium is oxidized. In next step, NiOH whole thrice. बेसिकली इट इज NiO2 आपका था प्लस KOH. KOH आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वो आपका रिएक्शन करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ NiOH whole thrice. बेसिकली जब आपको बुक में देखेंगे तो हियर इट्स रिटन NiO2 निकल ऑक्साइड, बट निकल ऑक्साइड प्लस KOH दैट बिकम्स NiOH whole thrice. तो दिस NiOH whole thrice दैट रिएक्ट्स, that is reduced, accepts 2 electron. These electron donated by anode, they are accepted by NiOH whole thrice and is converted to NiOH whole twice. Means oxygen state reduce होगा. निकल यहाँ पर देखिए OH की -1 होती है, तो -3 and निकल is +3. OH -1 है तो 2 means -2 and is +2. तो +3 से +2 में मीन्स रिडक्शन है. नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय कैडमियम, एक्सेप्टेड बाय निकल. इफ यू वांट टू हैव द रिएक्शन, जो दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, 2 electrons will cancel, 2 electrons, OH negative will cancel, OH negative, and you will get on the left side cadmium plus 2 NiOH whole thrice is equal to cadmium oxide plus 2 NiOH whole twice plus H2. So this is the overall reaction. This is your nickel cadmium cell. अब आफ्टर निकल कैडमियम सेल यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट सेल, दैट इज़ अ फ्यूल सेल. फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल है आपके यहाँ, एंड ऑन दिस फ्यूल सेल जनरली आपके ऊपर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में मिलते हैं. एंड इट इज़ बेसिकली द स्कोप ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर. फ्यूचर का जो सेल है आपका, जो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में, वो यही आपका फ्यूल सेल है. नेक्स्ट इज़ योर फ्यूल सेल, और इसके अंदर भी डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं. हम जो यहाँ पर स्टडी करते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या है? अब फ्यूल सेल एक्चुअली है क्या? फ्यूल सेल में फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. फ्यूल मीन्स आप किसको फ्यूल समझते हैं? जैसे कोल आपका फ्यूल है, बर्न करते हैं, केमिकल एनर्जी मिलती है. पेट्रोल है, डीजल है, इनको बर्न करके आपको एनर्जी मिलती है. दीज आर कॉल्ड फ्यूल्स. जैसे आप पेट्रोल बर्न करेंगे, देन पेट्रोल ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी. उस हीट एनर्जी से आप डिफरेंट वर्क कर सकते हैं. सपोज आपका पेट्रोल बर्न कर रहे हैं आप कार के अंदर या बाइक के अंदर, व्हेन यू बर्न द पेट्रोल देन हीट इज़ जनरेटेड.
उस हीट से क्या होता है, गैस एक्सपेंड करती है और आपका इंजन के अंदर जो सिलेंडर है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि 100 सीसी बाइक है, 120 सीसी बाइक है, कार की कैपेसिटी 1200 सीसी है, 1600 सीसी है। सीसी मीन्स बेसिकली एक इंजन के अंदर सिलेंडर होता है, सिलेंडर की कैपेसिटी है। उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन वर्क करता है और उस पिस्टन को जब गैस एक्सपेंड करते हैं, दैट पिस्टन मूव्स एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दैट पिस्टन दैट व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। जो आपकी कार का व्हील है वो रोटेट करता है, कैसे, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपका ऐसे सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन होता है, ठीक है। देन व्हेन गैस इज बर्न्ड, पेट्रोल बर्न करेंगे, इट विल प्रोड्यूस गैसेज, दीज गैसेज विल पुश द पिस्टन। ये पिस्टन को मूव करेगा, पिस्टन के इस मूवमेंट से ही आपका टायर मूव करता है, दैट गिव्स द थ्रस्ट टू द कार, उससे आपका कार मूव करती है। तो बेसिकली वहाँ पर क्या है कि पेट्रोल की जो हीट एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, उसको कन्वर्ट करते हैं हम किसी मैकेनिकल एनर्जी में। इफ़ द सेम थिंग यू यूज़ इन जनरेटर्स, तो जनरेटर्स में क्या होता है कि जनरेटर्स के अंदर सेम थिंग हैपन्स कि फ्यूल को आपने बर्न किया, बर्न करने पर गैसेज विल प्रोड्यूस्ड। जब गैसेज प्रोड्यूस होंगी तो गैस प्रोड्यूस होकर के गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। हीट होने से गैस एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के बाद सिलेंडर के अंदर जब गैस एक्सपेंड होगा तो पिस्टन को अप थ्रस्ट देगा, पिस्टन के मूवमेंट से आपका व्हील रोटेट करता है। अब जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके मूवमेंट से हम वी टर्न द डायनामो। डायनामो यू हैव रेड इन क्लास 10th। जब ये व्हील रोटेट करेगा इट विल टर्न द डायनामो, और डायनामो को टर्न करने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो जनरेटर्स के अंदर बेसिकली केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू हीट, और हीट से फिर हम बना लेते हैं वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टर्निंग दैट डायनामो। पहले मैकेनिकल बनेगा, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल बन जाएगा। इन दीज डिवाइसेज व्हाट हैपन्स कि व्हेन यू आर बर्निंग पेट्रोल, हीट आपकी प्रोड्यूस होगी, कुछ पार्ट हीट का वेस्ट हो जाता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल, देन मैकेनिकल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल। तो जब एनर्जी के कन्वर्जन्स होते हैं दैट टाइम व्हाट हैपन्स, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड, और वेस्ट होने की वजह से आपकी चाहे कार हो, चाहे आपके अदर व्हीकल्स हो, जनरेटर्स हो, 30 to 40% से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आती है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी गेट्स वेस्टेड। सेम थिंग हैपन्स इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है कि दैट यू बर्न द कोल, कोयले को बर्न करते हैं, बर्न करके कोल से व्हाट हैपन्स, स्टीम इज जनरेटेड, कोल से बर्न कर हीट आएगा, हीट से वी हीट द वाटर, वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम, स्टीम से हम टर्बाइन यानी डायनामो को टर्न करते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। तो फर्स्ट कोल को बर्न करने से हीट जनरेट होगा, हीट से स्टीम जनरेट होगा, स्टीम टर्बाइन को टर्न करेगा, मीन्स मैकेनिकल, और टर्बाइन की टर्निंग से फिर इलेक्ट्रिकल बनेगा। तो देयर आर सो मेनी कन्वर्जन्स, जितने ज़्यादा कन्वर्जन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली हैपनिंग इन योर थर्मल पावर प्लांट्स, इट इज़ हैपनिंग इन योर कार और बाइक, और इट इज़ हैपनिंग इन योर जनरेटर्स, कि फ्यूल की एनर्जी पहले हमको हीट की फॉर्म में मिलती है। अब यहाँ पर जो फ्यूल सेल है, दिस फ्यूल सेल इज़ अ स्पेशल डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ फ्यूल, हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी बीच के मैकेनिकल और अदर स्टेप्स को ख़त्म करके डायरेक्ट कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का एडवांटेज यही है कि डायरेक्टली आपके जो फ्यूल की हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सबसे कॉमन जो फ्यूल सेल आपका है दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मोस्ट कॉमन है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें नॉट ओनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मीथेन, अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो कैन बी यूज्ड, बट सबसे कॉमन आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला है। और इसको आप समझेंगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, विच इज़ एक्चुअली द सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमको एनर्जी इसी से मिलने वाली है, देयर विल बी नो अदर सोर्स, बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट विल हैपन, ऑल योर पेट्रोल, योर डीजल, योर कोल विल बी फिनिश्ड ऑफ। अर्थ के ऊपर जितना पेट्रोल है, कोल है, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली यूजिंग दैम। वी आर वेस्टिंग द पेट्रोल, वी आर वेस्टिंग द डीजल, वी आर वेस्टिंग द कोल, एंड अल्टीमेटली द टोटल स्टॉक ऑफ द अर्थ विल बी एग्जॉस्टेड। और जब टोटल अर्थ का स्टॉक खत्म हो जाएगा, दैट टाइम विल नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट टाइम दिस फ्यूल सेल विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल्दो अभी भी इसको हम यूज़ करते हैं, बट इट इज़ यूज इन स्पेस प्रोग्राम्स, अभी अर्थ पर ज़्यादा यूज़ नहीं है। नाउ बेसिकली इट इज़ योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप बर्न करते हैं, दिस रिएक्शन सी कि 2H2 + O2 गिव्स 2H2।
अगर आप हाइड्रोजन को बर्न करेंगे विद ऑक्सीजन, ऑन बर्निंग enormous amount of heat is generated, and the heat generated in this reaction is so high that this reaction becomes explosive. हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करेंगे तो एक्सप्लोसिव हो जाता है, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. तो दिस रिएक्शन बेसिकली यू कैन नॉट यूज़ इन योर जनरेटर्स, इट कैन नॉट बी यूज इन कार्स. आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं. बट फ्यूल सेल इज एडवांटेज कि इसके अंदर आप हाइड्रोजन को इधर से और ऑक्सीजन को इधर से पंप करते हैं. Okay, hydrogen at anode, this is your anode, and oxygen at cathode. And anode and cathode both are made up of graphite. They both are made up of graphite. Cathode is also made up of graphite. दोनों ही ग्रेफाइट के हैं, पोरस हैं, इनके थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न करते हैं. Then inside it there is an electrolyte. There is electrolyte in this reaction, and this electrolyte is basically KOH. Electrolyte is KOH. इधर से आपने हाइड्रोजन पास किया, इधर से ऑक्सीजन पास किया. अब एनोड पर देर इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पर देर इज ऑलवेज रिडक्शन. व्हेन हाइड्रोजन इज पास हियर, देन दिस हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड. दिस हाइड्रोजन with OH negative, OH negative from your KOH. It gives 2H2O and donates 2 electrons. Hydrogen is oxidized. Now oxygen will be reduced. इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड. बट ये रिएक्शन आपका डायरेक्ट हीटिंग है, बर्निंग है, एंड बर्निंग से एक्सप्लोसिव हो जाता है. नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय हाइड्रोजन दे विल गो टू कैथोड. अब कैथोड पर ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद दिस 2H2O, ये H2O है आपका इसके साथ, एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल कन्वर्ट टू 4OH नेगेटिव. Now here oxygen needs 4 electron. It has donated 2. So on balancing simply you multiply by 2. इसको डबल कर दीजिए आप and add the reaction. It will become 2H2. It will become O2, 2H2. Now 2OH negative and 2 means 4OH and this 4OH, so it will cancel out. 2 electron multiply 2, you'll cancel electron. 2H2O and here it is 4H2O. So out of them 2H2O will cancel out and here out of 4 you will have 2. So 2H2 plus O2 gives 2H2O. Overall reaction is same. This is basically burning of hydrogen. Hydrogen is the most efficient fuel on earth. आपको अर्थ के ऊपर जितने भी फ्यूल हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस ही हाइड्रोजन से होती है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन. इफ़ यू कंपेयर योर डीजल, योर पेट्रोल, योर केरोसिन, यू कंपेयर योर LPG, CNG, एनीथिंग, मैक्सिमम हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन. और हीट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इज़ सो मच हाई, इट्स सो इनॉर्मस दैट रिएक्शन बिकम्स एक्सप्लोसिव हो जाती है. इसलिए हम इस रिएक्शन को यूज़ नहीं कर पाते हैं. बट हियर वी कैन यूज़ बिकॉज हियर दिस इज नॉट प्रोड्यूसिंग हीट. अब इस रिएक्शन में रिएक्शन तो ओवरऑल वही है कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड. बट दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. हाइड्रोजन इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. हियर इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, here electrons are accepted, so electron will travel through it. इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होकर आएगा, इट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. इट मीन्स यहाँ पर ये बर्निंग नहीं हुआ है, सो देयर विल बी नो एक्सप्लोजन, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हीट. डायरेक्टली एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, और डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने से वेस्टेज नहीं है, एंड इट्स एफिशिएंसी इज अप्रॉक्सीमेटली 70%. अभी भी 70% है, 30% स्टिल में वेस्ट होता है. एवरीवेयर वेर एवर यू हैव डिवाइसेज, जितनी मशीन्स आपकी हैं, जो भी आप कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस आप लेंगे, सम पार्ट इज़ ऑलवेज वेस्टेड इसमें. लेकिन एफिशिएंसी बहुत हाई है, 70% है. अदर डिवाइसेज मे बी योर थर्मल पावर प्लांट, मे बी योर कार, मे बी योर बाइक, एफिशिएंसी इज हार्डली 30 to 40%. रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ फ्यूल इज़ वेस्टेड. आपने पेट्रोल बर्न किया, डीजल, कैरोसिन कुछ भी बर्न करेंगे, कोल बर्न करेंगे, तो बर्निंग में काफ़ी सारी हीट आपकी वेस्ट हो जाती है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स वेस्टेड व्हेन एवर यू हैव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट मिलती है आपको, और इसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आती है. दूसरी चीज़,
अब आपका देखिए इसमें H2 + O2 से बना गया आपका वाटर, एंड दैट वाटर कैन बी गिवन आउट, आप इसको निकाल सकते हैं। अब इस सेल का एडवांटेज देखिए कि नो केमिकल इज प्रोड्यूस्ड, इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, लेड है, एवरीवेयर सम एसिड बेस यू आर यूजिंग, बट हियर व्हाट यू आर टेकिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड बाई प्रोडक्ट इज वाटर। बाई प्रोडक्ट वाटर है, इट मीन्स ये सेल के अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं है, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, वेरी हाई एफिशिएंसी एंड इज पॉल्यूशन फ्री। थर्ड थिंग, इट इज़ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें आप सप्लाई करते रहेंगे, इट विल कंटिन्यूसली गिव यू एनर्जी, कंटिन्यूसली एनर्जी आपको देता रहेगा जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर बबल करते रहेंगे। ऑल द सेल्स बिफोर इट वट एवर यूर रेंड, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ है। आफ्टर सम टाइम दे गेट एग्जॉस्टेड। आपकी इन्वर्टर बैटरी भी साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 3-4 ईयर्स दैट इज स्पॉइल्ड, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है, एंड देन यू हैव टू रिप्लेस। बट हियर एडवांटेज क्या है कि जब तक आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें आप डालते रहेंगे, इट विल कंटिन्यूसली गिव यू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपको करना क्या होता है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आपका वाटर बन गया। अब आप पढ़ते हैं कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करें आप, 2H2O, yes 2H2 plus O2, and this reaction happens on passing electricity, or this reaction happens in presence of sunlight also। लाइट से इसका फोटोलिसिस, अगर आप कहें कि 2H2O and you pass light, it becomes 2H2 plus O2, that process is photolysis। Although it's not so easy process, ऐसा नहीं कि आप लाइट डाल के डायरेक्ट करा लेंगे, it needs some technological advances, but it happens। आप वाटर से दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो इस सेल का एडवांटेज क्या है कि फीड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस वाटर। वाटर को आप लाइट की एनर्जी से दोबारा कन्वर्ट कर लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगेन यू कैन सप्लाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मीन्स दिस सेल विल कंटिन्यूसली कीप ऑन वर्किंग, ये काम करता रहेगा आपका। एंड इट हैपन्स इन स्पेस स्टेशंस, जो आपके स्पेस स्टेशंस हैं, जो आपके रॉकेट्स आपके स्पेस में आप भेजते हैं, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके स्पेस स्टेशंस हैं, सैटेलाइट्स हैं, दे कीप ऑन वर्किंग फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक काम करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज हियर वी हैव फ्यूल सेल्स, उनमें हम प्लांट करते हैं फ्यूल सेल्स को, और फ्यूल सेल्स में आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम उसमें सप्लाई करके देते हैं। दे प्रोड्यूस वाटर, दैट वाटर इज़ रिसाइकल्ड, उसको फोटोलिसिस कराते हैं। स्पेस में सनलाइट आपको मिल रही है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसको आप दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दोबारा से आप फीड कर देते हैं, इट विल गिव वाटर। इससे दोबारा अगेन यू कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर फीड कर देंगे, इट विल गिव वाटर। वाटर को फिर फोटोलिसिस करेंगे मीन्स सनलाइट से, अगेन विल कन्वर्ट टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे गेट कन्वर्ट इनटू वाटर प्लस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से अगेन वी प्रिपेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे बनाए? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट मीन्स अल्टीमेटली सनलाइट की एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट इट्स नॉट अ सोलर सेल, इट्स नॉट सोलर सेल। सोलर सेल में एनर्जी ऑफ सनलाइट इज डायरेक्टली कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट हैव सनलाइट? किसी दिन सनलाइट नहीं है तो क्या करेंगे आप? काम नहीं कर सकते हैं। बट दिस विल कीप ऑन वर्किंग बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका फ्यूल की तरह आपके पास प्रेजेंट है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, यू कैन स्टोर इट, एंड दिस द सेम टेक्नोलॉजी विच विल बी यूज इन द कार्स। अब आजकल आपको बताया जाता है इन टीवी एंड इन डिफरेंट एड्स कि इन फ्यूचर वी हैव द कार्स विच विल बी रनिंग ऑन वाटर। पानी से चलने वाली कार जो बात करते हैं, बेसिकली दे वर्क ऑन दिस फ्यूल सेल। इन फ्यूल सेल, इन दोज कार व्हाट वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जैसे आपका जस्ट लाइक यू हैव स्टोरेज ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आपके टैंक्स होते हैं। सेम वे यू कैन स्टोर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्टोर करके रखेंगे एंड विल फीड दैम इनटू द फ्यूल सेल, इट विल गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे आप अपनी कार को रन कर लीजिए, दैट कार विल रन। व्हेन यू हैव वाटर, जो वाटर बनेगा एज बाई प्रोडक्ट, उसको आप फोटोलिसिस कराइए, मीन्स कीप योर कार इन द सनलाइट, अगेन इट विल गिव योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, स्टोर कर लीजिए, देन यूज इट अगेन, मीन्स इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। बट द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अभी इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव गैस, यू नीड अ सिलेंडर विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ, वेरी हैवी, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट नाउ अवेलेबल। अभी आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, बट इन फ्यूचर इट विल हैपन एंड वी विल बी यूजिंग दीज फ्यूल सेल्स इन योर कार्स। तो दैट इज़ अ फ्यूचर सेल। फ्यूचर में यही सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। नाउ दैट इज़ ऑल अबाउट योर सेल्स
आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड इट, इट वॉज इंटरेस्टिंग, देन लाइक योर वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.